हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल। Good afternoon, sir. ओके, सो एक मिनट जरा वेट वेट करिएगा बेटा थोड़ा। फोर्थ, तो हम लोग के 4 एक्सपेरिमेंट हो गए थे, ठीक है। आज हम लोग 5th एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंड आफ्टर दिस 5th experiment there will be your lab midsem on the next term. Clear? Because जो 5 मिडसेम के बाद हमारा एक लैब मिडसेम होना है, ठीक है। क्लियर? तो 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। एंड ईच एक्सपेरिमेंट विल कैरी 4 क्वेश्चंस, so total 5 experiments are involved, so 5 4 are 20 questions will be there. Clear? So 20 minutes will be sorry, half an hour will be allotted. Clear? And in the next term we will do this clear activity basically. So I'm going to share you the is it visible? This is lab activity. Is it visible? Lab activity is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you see your our next basically experiment is what? देखिए 4 तक हमारे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, ठीक है। Not 4, we have done this just wait. Okay, हाँ, हम लोग का नॉर गेट तक हो गया था एक्सपेरिमेंट। क्लियर? Now in today's lab we will discuss the transient and DC analysis of NAND gate using CMOS inverter. Clear? पिछली बार हम लोगों ने नॉर गेट का पढ़ा था, आज हम लोग NAND गेट का पढ़ेंगे, सिमुलेशन DC एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ NAND गेट यूजिंग CMOS इन्वर्टर। क्लियर? तो सबसे पहले हम बता दें आपको, इसमें बेसिकली जो NAND गेट होता है इट इज जस्ट अपोजिट टू द NOR गेट। क्लियर? नॉर क्या करता है? ऐड करता है, ऐड करने के बाद उसका इन्वर्ट करता है, और जो नैंड करता है वो बेसिकली पहले मल्टीप्लाई करेगा एंड देन द रिजल्ट विल बी इन्वर्टेड। क्लियर? so you need to design and analyze the NAND gate inverter basically using CMOS. Clear? So I'm just going to show you the manual before going to start this. Clear? So just wait. Or till this experiment, your first lab midsem will be there. Starting 5 experiment will occur. Clear? ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है. So I'm just sharing you the experiment detail. Clear? Just wait. Okay, I will then discuss you the programming part. And okay, so we have now the availability of this. So I'm just sharing you. सभी को दिख रहा है ये? This is visible. जो भी हम लोग के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी रेस्पेक्टिव वीडियोस as well as the links available to the demonstration of that experiment I share you on Google Classroom. Okay, तो इनके demonstrations भी आप लोग देख सकते हैं, exactly that are available on YouTube's video. Clear? And also the discussion that related to your lab I always discuss during the lab here, like how it works and how the coding we are doing for that circuit design. Clear? So everything we cover along with the simulation result. Clear? So you can see we have this CMOS inverter. So in previous if you see for NOR gate inverter, so NOR gate में हमारा नीचे की तरफ दोनों MOSFET पैरेलल थे, नीचे वाला मीन्स NMOS, ठीक है।
एंड दिस अबव वन इज PMOS। तो Q3 एंड Q4 यहाँ NMOS हैं, Q1 Q2 आपके PMOS हैं। NMOS आप देखेंगे तो हमारे सीरीज में लगे हुए हैं और PMOS पैरेलल में लगे हुए हैं। किसके केस में? NAND गेट के केस में। ठीक है, अगर नॉर गेट की हम लोग बात करते थे तो नॉर गेट में क्या होता था, नीचे हमारा NMOS पैरेलल था और ऊपर जो है इसका रिफ्लेक्शन सीरीज में था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो PMOS होता है इट इज जस्ट अपोजिट टू NMOS। अगर NMOS में हमारे ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो ये ऊपर जाके PMOS में पैरेलल में हो जाएंगे। और अगर ठीक है, नीचे अगर सीरीज में कनेक्शन है तो ऊपर पैरेलल हो जाएगा, नीचे पैरेलल में है तो ऊपर सीरीज में हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गेट यू आर डिजाइनिंग। क्लियर? इज इट NAND गेट और NOR गेट? क्लियर? नाउ if you see our system basically, ठीक है, in this system you can see we have two NMOS and two PMOS। ठीक है, so Q1 Q2 are the PMOS, Q3 Q4 are the NMOS। clear? We will applying two inputs over here on this terminal and this terminal। clear? so दो input terminals है हमारे पास जहाँ पे हम input अप्लाई करते हैं। clear? you can clearly see this। जो inputs हम अप्लाई करते हैं वो एक तो इस टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं और एक इस टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। क्लियर? सो ये हमारे इनपुट्स होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज योर VA एंड दिस इज योर VB। क्लियर? A और B वोल्टेज सिग्नल्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या पल्स इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। देन यू विल गेट आउटपुट फ्रॉम हेयर, हेयर यू विल गेट आउटपुट। क्लियर? क्लियर? इनपुट जो देंगे हम, क्योंकि हमारा जो ये सप्लाई वोल्टेज है, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज एंड इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 वोल्ट है। तो एग्जैक्टली जो सप्लाई दे रहे हैं 5 वोल्ट की दे रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा इनपुट वेरी करेगा, ओके, ये हम मान के चलिए सप्लाई हमारी 5 वोल्ट की है, दिस इज प्लस 5 वोल्ट मैक्सिमम सप्लाई, DC सप्लाई है। और जो इनपुट वेरी करेंगे, ये चाहे VA हो चाहे VB हो, ये 0 से लेके +5 के बीच में वेरी करेंगे। क्लियर? इनपुट हमारा जो VA और VB है 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में वेरी करेगा। 5 वोल्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 0 वोल्ट इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो एज पर द इन्वर्टर रिक्वायरमेंट, क्लियर, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग अ पल्स इनपुट लाइक दिस। ये हमारा कुछ पल्स इनपुट है मान लीजिए, ठीक है, दैट इज 0 1 1 को हम +5 वोल्ट लिख रहे हैं, दैट इज द हायर वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए हम इनपुट स्टार्टिंग में 0 दे रहे हैं, मतलब लो इनपुट दे रहे हैं, दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई। ठीक है, तो सपोज वी आर प्रोवाइडिंग लो इनपुट, तो लो देने का मतलब है कि हम इसके जो हमारे पास दो इनपुट्स है ना, V एंड VB, तो इसके हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर? इफ यू सी देयर विल बी 4 कॉम्बिनेशन ऑफ VA एंड VB। क्लियर? एंड यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो अगर इसके कॉम्बिनेशन देखें VA और VB के, तो 1 मिनट में थोड़ा इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका मान लीजिए VA है, ये VB है, ये दोनों हमारे इनपुट्स हैं, these are इनपुट, एंड यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप VA की हम बात करें तो पहला इनपुट हम दोनों 0 0 दे रहे हैं। अगर VA और VB दोनों 0 हैं, मतलब दोनों 0 हैं, तो पहले NMOS ऑन होगा या PMOS ऑन होगा इनपुट 0 होने पे? बताइए, विच MOSFET विल गेट ऑन? ऑन होगा। PMOS ऑन हो, वेरी गुड। PMOS ऑन होगा और दोनों ही ऑन हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों इनपुट आपने 0 0 दिए, तो दोनों ही गेट टर्मिनल पे गया PMOS के, ये Q1 और Q2 के इनपुट। ठीक है, एक इनपुट यहाँ से गया, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ से जा रहा है कनेक्शन विदाउट टचिंग दिस वायर, यहाँ पे गेट टर्मिनल पे आ गया Q2 के सेकेंड MOSFET के, और एक आपका यहाँ से होते हुए ये इनपुट गया बेस टर्मिनल ऑफ Q1, सॉरी गेट टर्मिनल। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर पे गया, तो दोनों इनपुट आपके 0 0 पे PMOS ऑन हो गए। तो PMOS अगर ऑन हो गया मीन्स दोनों ऑन है, और आपको पता है कि पैरेलल में चूंकि दोनों PMOS कनेक्टेड हैं, ठीक है, पैरेलल में अगर एक भी ऑन हो जाएगा तो आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर? पैरेलल कनेक्शन में एक भी अगर आउट ऑन हो जाए, चाहे ये ऑन होता चाहे ये ऑन होता, तो भी हमको आउटपुट मिल जाता, एक ऑफ रहता तो भी आउटपुट मिलता।
क्लियर। लेकिन चूंकि दोनों ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको इनपुट जो है मतलब ये आउटपुट जो है यहाँ से एक पाथ बना लेगा, चाहे इसके थ्रू, इधर इट विल टेक द पाथ लाइक वे फ्रॉम द Q2, इधर इट विल टेक द पाथ फ्रॉम Q1। ठीक है, या तो ये Q1 से पाथ ले लेगा या Q2 से ले लेगा, के किसी भी डायरेक्शन में, या इधर से चाहे इधर से, आपको आउटपुट मिल जाएगा। और आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिल जाएगा। दैट इज VDD, दैट इज +5 वोल्ट। तो कहने का मतलब है आपने, सॉरी, आपने इनपुट लो दिया था, आपने इनपुट क्या दिया था? लो दिया था। ठीक है, 0 0 दिया था ना। जब 0 0 दिया तो आपको आउटपुट क्या मिल गया? हाई मिल गया, +5 वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, कोई भी एक पाथ मतलब जो भी ट्रांजिस्टर ऑन होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो चूंकि ऊपर के दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हुए हैं तो दोनों एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेंगे। और ये आपको पता है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो चूंकि ऊपर के ऑन हो गए तो ऊपर वाले जो मॉसफेट हैं ये हमारे लो रेजिस्टिव पाथ हो गए एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करके आउटपुट पे दे देगा। अब हम मान लेते हैं केस चेंज कर देते हैं। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं, इनपुट VA को 0 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड केस। तो अगर हमारा सेकेंड केस में VA मान लीजिए 0 है और ये 1 है, अब कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा और कौन ऑफ रहेगा? बताइए। हेलो, 0 और 1 पे क्या कंडीशन होगी, कोई बताएगा? 0 1 या 1 0? देर इज टू ट्रांजिशन स्टेज, ये एग्जैक्टली ट्रांजिशन स्टेज है। फ्रॉम 0 to 1 मीन्स 0 to यहाँ, यहाँ पे आप जा रहे हैं। ठीक, और एक होती है 1 to 0, 1 to 0 मतलब 1 से यहाँ 0। तो दीज आर द ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेज हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? दीज आर द ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, अगर मान लीजिए VB हमारा 0 हुआ है, या हाँ VB अगर हमारा मान लीजिए 1 हुआ है, तो 1 होने का मतलब आपका ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और VA आपका 0 हुआ है, VA 0 होने का मतलब ऊपर का भी ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। क्लियर? इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये ट्रांजिशन स्टेज है। इसमें चूंकि यहाँ ये ऊपर वाला भी ऑन हो गया है, ये भी ऑन हो गया है। क्लियर? ठीक है ना, लेकिन ये आपका ऑफ रहा है नीचे वाला, तो ये आपका ऑफ रहा है क्योंकि इस पे तो आप क्या दे रहे हैं, VA पे आप दे रहे हैं 0। तो 0 की वजह से ये NMOS तो नहीं ऑन होगा, ये आपका PMOS ऑन हो गया। तो PMOS तो उसको पाथ मिलता जाएगा। लेकिन अब ये चूंकि नीचे ये भी ऑन हो गया तो इसके ऑन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑफ है। कि ये ऑफ होने की वजह से सीरीज में है ना दोनों कनेक्शन, दोनों ट्रांजिस्टर। तो चूंकि दोनों सीरीज में है तो कोई पाथ ये इस पाथ को फॉलो ही नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि दोनों सीरीज में है। सीरीज में एक भी सर्किट ब्रेक हो गई तो रिजल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये इस पाथ को फॉलो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि नीचे का पाथ ब्रेक है। ठीक है, एक हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ है। लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये ऑन होने की वजह से ये इधर से हमारा पाथ लेता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन मतलब यहाँ से अब हमारा ट्रांजिस्टर स्विच होना, मतलब एक तरह से ये देख सकते हैं आप, जब 0 से हम हाई जा रहे हैं मतलब इनपुट 0 से 1 दे रहे हैं, 0 से 1। ठीक, तो हमारा ये ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब स्टेबल स्टेट की आप दिख रहा होगा कुछ, इसी स्टेबल टाइप स्टेट। ठीक है, हायर पे। तो 0 से 1 इज द ट्रांजिशन एंड 1 to 0 इज द ट्रांजिशन। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ही 1 to 0 में भी होगा। 1 to 0 में क्या होगा, 1 की वजह से ये तो आपका ऑन हो जाएगा लेकिन ऊपर ये दोनों ऑफ रहेंगे। ठीक है, और 0 की वजह से ये ऑन हो जाएगा, 0 की वजह से कौन सा ऑफ रहेगा, 0 की वजह से ये ऑफ रहेगा और ये 0 यहाँ पे भी जाएगा तो ये आपका Q2 ऑन हो जाएगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि Q2 ऑन हो गया, अब यहाँ Q1 ऑफ है और इस 1 की वजह से Q3 ऑन हो गया। तो Q3 और Q4 में Q3 ऑन है, Q4 ऑफ है, लेकिन Q1 Q2 में Q1 ऑफ है, Q2 ऑन है। ठीक है, तो नीचे वाला तो एक ऑन होने से कुछ काम ही नहीं होना है, वो तो सीरीज में है, लेकिन ऊपर चूंकि एक पैरेलल है तो यहाँ से पाथ ले लेगा। ठीक है,
इस तरीके से। फिर पैरेलल में एक भी ऑन होगा तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज योर अगेन ट्रांजिशन स्टेज। तो ये दोनों हमारी ट्रांजिशन स्टेज हैं। इस केस में हमें आउटपुट 1 मिला था एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, अब लास्ट स्टेज है 1 1। 1 1 में आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे भी देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि जब 0 और 1 दे रहे हैं तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 इंटू, पहले नैंड गेट का आउटपुट आएगा 1, यहाँ भी 1 आएगा और 1 हमें मिल भी रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब हमारा एक मतलब 0 1 दे रहे थे तो 1 की वजह से ये ऑन हो रहा था लेकिन ये ऑफ था। ठीक है, और सिमिलरली इस 0 की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा था और 1 की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा था। तो ऊपर एक पैरेलल में ऑन होने की वजह से हमें VDD हाई मिल रहा था, आउटपुट हाई मिल रहा था। ठीक है, तो कोई भी एक अगर आपका हाई होगा तो आउटपुट हाई ही मिलेगा नैंड गेट में। अब हमने कंसीडर किया कि दोनों हमारे 1 1 है। ठीक है, अगर हमने दोनों 1 1 ले लिए तो दोनों 1 1 का मतलब है ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 का मतलब क्या होगा कि दोनों ही PMOS आपके, सॉरी, दोनों NMOS ऑन हो जाएंगे और PMOS दोनों के ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि PMOS के लिए लो इनपुट चाहिए, यहाँ हाई आप दे रहे हैं दोनों पे, तो दोनों NMOS ऑन हो गए। तो रिजल्ट जो है, चूंकि दोनों सीरीज में थे और दोनों ही ऑन हो गए, तो जो भी आउटपुट आपका यहाँ पे स्टोर्ड है, प्रीवियस कंडीशन का आउटपुट है, वो सीधे यहाँ से होते हुए नीचे आ जाएगा, दैट इज 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाथ इधर से मिल गया इसको, अब ऊपर हाई रेजिस्टेंस पाथ हो गया, नीचे लो रेजिस्टेंस पाथ हो गया, तो आउटपुट हम नीचे से एक पाथ ले लेगा एंड दैट विल कम टू 0। ठीक है, इसका मतलब 1 1 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपका सर्किट वेरिफिकेशन हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट बताइए? सर्किट वेरिफिकेशन में कोई डाउट? ट्रूथ टेबल वेरिफिकेशन में बताइए बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया ये। हम लोग इसकी वर्क उस पे आते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें कोडिंग पार्ट पे आते हैं। ठीक है, जो हमें P-SPICE में कोडिंग करनी है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग हम लोगों ने इसकी की है, प्रोग्रामिंग ऑफ ट्रांजिएंट एंड DC एनालिसिस ऑफ CMOS NAND गेट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, अगेन वी आर असाइनिंग द नोट्स। नोट्स मैंने बताया था P-SPICE में नोट्स असाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने कोडिंग करी है। तो अगर आप कोडिंग देखेंगे, सी द कोडिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए, पहले हम VDD को डिफाइन करते हैं। तो VDD इज योर सप्लाई वोल्टेज, कहाँ से कहाँ के बीच में कनेक्टेड है? नोड 2 से लेके नोड ग्राउंड के बीच में। ठीक है, नोड 2 कहाँ है? वेयर इज योर नोड 2? दिस इज योर नोड 2, इसको हम लोग नोड 2 बोल रहे हैं। VDD जो है यहाँ पे नोड 2 पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये नोड 2 से लेके रेफरेंस तक, मीन 0 तक हमारा सप्लाई दे रहा है पूरी सर्किट को। तो 2 से लेके 0 के बीच में एग्जैक्टली हमारा VDD है, मीन सप्लाई एक्ट हो रहा है। और सप्लाई कितने वोल्टेज की है? 5 वोल्ट की है। तो देखिए 5 वोल्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड लाइन में देखेंगे तो VA इज योर इनपुट वोल्टेज। ठीक है, जिसको आपने 1 से लेके 0 के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। कितने? 1 से, मान लीजिए ये हमारा VA है। ठीक है, और ये VB है। तो VA हमने कहाँ कनेक्ट किया है? 1 से लेके 0 के बीच में। तो ये आपका 1 हो गया एंड ये आपका 0 हो गया। ये देखिए, नीचे का पार्ट आपका 0 हो गया। क्लियर? तो दिस इज 1 to 0। ठीक, DC 5 वोल्ट आप दे रहे हैं, इनपुट जो आप दे रहे हैं वो 0 से 5 के बीच में वेरी करेगा, 0 से 5 वोल्ट। ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ व्हाट टाइम ड्यूरेशन इज 1 नैनोसेकंड टू 20 माइक्रोसेकंड। ठीक है, क्लियर? 0 to 1 नैनोसेकंड, उसके बाद 20 माइक्रोसेकंड एंड देन 40 माइक्रोसेकंड। 3 टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे VB है, VB आपका 4 to 0 के बीच में कनेक्टेड है। VB इज योर 4 to 0, मीन्स ये मान लीजिए 4 है, ये 0 है। 4 to 0 के बीच में VB कनेक्टेड है। ठीक, अब RL की बात करें तो RL आपका, RL इज योर रेजिस्टेंस, दैट इज लोड रेजिस्टेंस, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन 5 and 0। तो यहाँ हम RL लगा देते हैं। ठीक है, ये 5 किलो ओम का RL है, जो कि कहाँ कनेक्टेड है?
5 और 0 के बीच में, नॉट, हाँ सॉरी, 100 ओम, एक मिनट, दिस इज योर 100 किलो ओम, नॉट, दिस इज योर 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने 5 और 0 के बीच में कनेक्ट किया। ये आपका 5 है और ये आपका 0 है, ठीक है। 5 से लेके 0 के बीच में लोड पे हमने 100 किलो ओम कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। इसके बाद आता है M1 ट्रांजिस्टर। M1 ट्रांजिस्टर इज दिस इज योर M1 ट्रांजिस्टर, ये ठीक है। अगर M1 ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ कनेक्टेड है, पहले ये दिखाना होता है हमें कहाँ कनेक्टेड है। तो M1 आप देखेंगे 5122 के बीच में कनेक्टेड है, 5122। तो 5122 कैसे दिखाएंगे बताइए। ये रहा आपका 5 लाइन, ये पूरी लाइन आपकी 5 है, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। और 2 कहाँ से होगा, ये भी 2 है, ये 2 और ये 2 दोनों शॉर्ट हो रहे हैं, गेट और ऊपर का टर्मिनल दोनों शॉर्ट हो रहे हैं, ड्रेन गेट्स, ठीक है, और ये सोर्स है, ठीक है। तो दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर ड्रेन गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा गेट के साथ शॉर्ट हो रहा है, तो इसलिए 2 और 2 हम दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है, योर 5122 दैट इज M1, ठीक है। एंड P mod का मतलब है MOSFET, क्लियर, P MOSFET मीन्स P चैनल MOSFET, ठीक। और इफ यू सी P mod में लेंथ हमने जो दी है, लेंथ मीन्स MOSFET की साइजिंग करते हैं, तो लेंथ इज 1 माइक्रोमीटर एंड विड्थ इज 20 माइक्रोमीटर। ये सब डिफॉल्ट साइज है जो कि सिस्टम की है, ठीक है, 20 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। Similarly, if you see M2 is the second MOSFET that is again 5422 के बीच में कनेक्टेड है, 5422 ये आपका सेकंड MOSFET है, ये 5422 देखिए 5, this is your 4, this is your 5, this is your 4 and this is 22, ये आपका 22 हो गया। तो 5422 के बीच में आपका MOSFET सेकंड कनेक्टेड है, ठीक है। इसके लिए दोनों के लिए डॉट मॉडल फाइल होती है, तो डॉट मॉडल P mod L is equal to 1 unit, W is equal to 20 unit, ये डिफॉल्ट लेंथ और विड्थ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप कि मॉडल फाइल हमने लिख दिया डॉट मॉडल P mod PMOS VTO माइनस हाँ, अगर आप देखेंगे डॉट मॉडल P mod PMOS, ठीक है, और VTO इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, VTO इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसकी वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। एंड और ये आपका जो है बेसिकली इक्वल है 4.5 इंटू ई की पावर -4। CVD इज द चार्जिंग कैपेसिटर है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू है बेसिकली दैट इज 5 पिकोफैरड। देन CBD बेसिकली ड्रेन टर्मिनल का कैपेसिटेंस है, CBS इज सोर्स टर्मिनल कैपेसिटेंस, ठीक है, दैट इज 2 पिकोफैरड, और RS इज द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ 5। हेलो बेटा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बेटा, हेलो। तो आप देख सकते हैं हमने डॉट मॉडल फाइल लिख दी दोनों के लिए, ठीक है, PMOS एज वेल एज NMOS के लिए, ठीक है। NMOS के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और गेट रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, RG इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है, ठीक।
हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। बीच बीच में एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो भी मॉडल फाइलें होती हैं ये हमको लिखनी होती हैं। ठीक है, अगर मॉडल फाइल इंसर्ट नहीं कराएंगे तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये nmos है या pmos है, मॉडल फाइलें हम लोग इंसर्ट कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इसमें, ठीक है, लेंथ और विड्थ ये डिफॉल्ट है। ठीक है, M3 आपका नीचे का जैसे ऊपर के 2 ट्रांजिस्टर डिफाइन किए ऐसे नीचे वाले ट्रांजिस्टर भी डिफाइन करेंगे। M3 देखिए 5130 के बीच में कनेक्टेड है। M3 कहाँ कनेक्टेड है? 5130 के बीच में। ठीक है, ये रहा M3। तो ये 5 तो आपका ये हो गया था, ये आउटपुट वाली लाइन थी जो आउटपुट की मैं बात कर रहा था, ये आउटपुट। ठीक है, ये आपका 5 1 कहाँ है? 1 आपका ये लाइन है जहाँ पे 1 इनपुट दे रहा है, ये जैसे ये VA है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। M4 की बात करेंगे, 3400 है। तो देखिए ये M4 है, दिस इज योर MOSFET 4। ये देखिए ये 3 टर्मिनल हो गया, 3 ये है, 3 वाला कॉमन टर्मिनल है, 3400। 4 कौन सा था? 4 हमारा ये VB वाला टर्मिनल था ना, ये देखिए VB को हमने 40 से कनेक्ट किया था, ये रेफरेंस हो गया। तो 3400, ये दोनों शॉर्ट हैं, ये 00 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे नोट्स को डिफाइन करते हैं। देखिए M4 3400 हो गया। एन मॉड लेंथ और विड्थ इसकी कितनी है? 1 यूनिट और 1 माइक्रोमीटर और 50 माइक्रोमीटर। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी लेंथ 1 माइक्रोमीटर और विड्थ 50 माइक्रोमीटर है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इनके पैरामीट्रिक वैल्यूज विथ नोट्स हम इसको यहाँ कोडिंग में मेंशन करते हैं। ठीक है, इसकी भी फिर डॉट मॉडल फाइल लिख दिया nmos के लिए भी, जैसे pmos के लिए लिखा था। सिमिलरली वी हैव डू इट फॉर nmos। ये मॉडल फाइल हो गई हमारी। RDS इज द ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, जो कि कहाँ पे कनेक्टेड है? यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज योर RDS, दैट इज ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज योर ड्रेन टर्मिनल एंड दिस इज योर सोर्स टर्मिनल इन द ग्राउंड। ठीक है, तो ड्रेन टू सोर्स के बीच में हमारा जो है RDS लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज 1 मेगा ओम। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 मेगा ओम। ठीक है, 1 मेगा ओम।
और जो गेट टू सोर्स हमारा ऑक्साइड कैपेसिटेंस है वो भी यहीं पे लग। गेट टू सोर्स ऑक्साइड कैपेसिटेंस कितना है, ये देखिए 1 पिको फैरड है, ठीक है। और गेट टू ड्रेन ऑक्साइड कैपेसिटेंस कितना है, ये भी 1 पिको फैरड है। गेट टू बेस, ठीक है, या बॉडी आप कह सकते हैं, ऑक्साइड कैपेसिटेंस कितना है, 1 पिको फैरड, ठीक है। तो ये सारे ऑक्साइड कैपेसिटेंस हो गए जो अपनी अपनी जगह पे माउंट लगे हुए हैं। इसके बाद हम इसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस करनी है, तो डॉट ट्रान कहाँ से लेकर कहाँ तक। ट्रांजिएंट एनालिसिस एक्चुअली टाइम के रेस्पेक्ट में होती है, मीन्स आउटपुट रिस्पॉन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम जो हम ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, रेंज 0 से लेके, सॉरी 1 माइक्रो सेकेंड से लेके 500 माइक्रो सेकेंड तक, यहाँ तक के लिए हम टाइम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर डॉट डीसी इज द डीसी एनालिसिस। वीए हमारा जो है रेंज दिया हुआ है, सबको देख सकते हैं। डीसी एनालिसिस में भी 0 से 5 वोल्ट, ठीक है। और वी हमारा फिर 0 से 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा डीसी एनालिसिस के लिए है। फिर डॉट प्रोब एंड डॉट एंड, ठीक। फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग देखते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो थोड़ा दिक्कत होगी, प्रोग्रामिंग आना जरूरी है आपको, क्योंकि प्रोग्रामिंग से ही आपको ये समझ में आएगा हम ऐसा। अब जब ये आप कोडिंग कर लेंगे तो इसके बेसिस पे ऑटोमेटिक ये सर्किट फॉर्म हो जाएगी सिस्टम में, ठीक है। और ये भी है कि अगर मान लीजिए एम आई ऑडिबल प्रॉपरली। एक तो तरीका Yes, होता sir. है, हाँ, एक तरीका होता है कि हम VLSI या इसमें जो भी हम प्रोजेक्ट या लैब का काम करते हैं, ठीक है, उसमें हम सर्किट पहले डिजाइन करते हैं। सर्किट से हमारा जो है सिमुलेशन होता है, ठीक है। हमने सर्किट मतलब मॉसफेट वगैरह सब अपने आप हमने डिजाइन किया स्पेक्ट्रल सर्किट पे, और हमें रिजल्ट मिल गए उसको सिमुलेट करा के, पैरामीटर डिफाइन करके, ठीक है। और एक तरीका होता है हम कोडिंग के थ्रू, मतलब रिवर्ट प्रोसेस चलते हैं कि रिवर्स प्रोसेस। कोडिंग हमें अवेलेबल है, कोडिंग हमें पता है, कोडिंग से हम प्रॉपर लिख के उससे हमारी सर्किट फ्रेम हो जाती है। जैसे भी हमने नोट्स आपको डिफाइन करके बताए कि एक एक नोट से हम कैसे ट्रांजिस्टर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एग्जैक्टली यहाँ से, इस कोडिंग से हमारी ये सर्किट बन जा रही है, ठीक है। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीस वाइज में हमारा इस तरह भी काम होता है। ये रिजल्ट है, देख सकते हैं। दिस इज द, जैसे नॉर गेट के लिए आया था वैसे ही नैंड गेट के लिए भी है ऑलमोस्ट रिजल्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये बेसिक हमारा जो रिजल्ट है, ये हमारा जो बना है, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है। ट्रांजिएंट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। तो ये आपकी टाइम एक्सिस है बेसिकली, और ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चारों केस यहाँ डिस्कस हो रहे होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो जब हमारा केस 0 0 का है, मीन्स दोनों इनपुट 0 हैं, तो आउटपुट हाई मिलेगा आपको। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, आपको दो है, दोनों इनपुट आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं बेटा। ये एक इनपुट ये है, ये फर्स्ट इनपुट है, फर्स्ट इनपुट, एंड दिस इज योर सेकेंड इनपुट। सभी को दिख रहा है ये, तो ये आउटपुट है बेटा, दिख रहा है सभी को, Yes, sir. ठीक है। ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो अगर आप देखो, कंपेयर करो रिजल्ट्स को, ठीक है, आपको क्या दिखेगा कि जब हमने बताया था आपको चारों कॉम्बिनेशन बताए थे इनपुट के और आउटपुट के, मीन्स मान लीजिए VA VB की हम बात करें और यहाँ पे V आउट की बात करें, ठीक है। तो हमने जब इनको 0 0 रखा था तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा था, हाई मिल रहा था ना। हाई मतलब 5 वोल्ट मिल रहा था, ठीक है। जब हमने इनपुट 0 और 1 दिया तो हमको आउटपुट तब भी क्या मिल रहा था, हाई मिल रहा था, ठीक है। 1 0 दिया तब भी हमको आउटपुट 5 वोल्ट मिल रहा था। अगर 1 1 दे रहे थे तो आउटपुट 0 मिल रहा था। तो ये क्या यहाँ फुलफिल हो रहा है, आप देखिए। जब हमने इनपुट 0 0 दिया, हमारा दोनों इनपुट 0 है। 0 का मतलब हम इस कंडीशन में हैं, अभी यहाँ पे 0 0, ठीक। तो हमारा आउटपुट आप देखेंगे इस ड्यूरेशन में हाई है, देखिए, ठीक है। जब आप देखेंगे ऊपर की तरफ, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ इसको, ये दिख रहा होगा सभी को। मैं इसको हाइड कर देता हूँ बेटा, ये दिख रहा है सभी को। हेलो,
दिख रहा है बेटा? ये देखिए, ये इनपुट यहाँ पे लो है, नीचे वाले ये दोनों इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। तो इसको देखिए, VA के लिए भी हमारा लो है, यहाँ भी लो है। यहाँ लो का मतलब यहाँ पे है वैल्यू ना, तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। ये देखिए आउटपुट आपको हाई मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। और यहाँ से जैसे जीरो से हम हाई गए, मतलब जीरो से हमारा हम जीरो से हाई, जीरो से वन गए, मीन्स देखिए जीरो जीरो से वन गए हम, ठीक है। ये देखिए जीरो से वन गए, तो जीरो से वन का मतलब हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, हाई गए। तो जीरो से हाई गए तो मतलब देखिए हमें, अब हमें अगर इनपुट हमारा चेंज हो रहा है, इनपुट हमारा है, जैसे VA की वैल्यू 0 है, VB की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हमारा VA है, यहाँ पे VA की वैल्यू 0 है और BB की वैल्यू हाई है, तो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेज। तो उस केस में आप देखेंगे कि जो आउटपुट है वो आपका हाई ही मेंटेन रहेगा। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेज है, यहाँ देख सकते हैं, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेज, यहाँ आउटपुट हाई मेंटेन है। या ये कह सकते हैं ये योर ट्रांजिशन स्टेज है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेज, 1 to 0 एंड 0 to 1, ठीक है। दिस इज फ्रॉम 1 to 0, और यहाँ देखेंगे तो 0 to 1 है, ठीक है। अगर दोनों इनपुट आपके लो हैं तो आउटपुट हाई मिला, आप देख सकते हैं। दोनों इनपुट ये लो हैं, ये लो है, तो आउटपुट आपको यहाँ हाई मिल रहा है। और दोनों इनपुट अगर हाई हैं, दोनों इनपुट हाई का मतलब ये हाई है, ये हाई है, तो आउटपुट लो मिल रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। दोनों इनपुट आपके हाई हैं तो आउटपुट लो मिल रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये आपका रिजल्ट है ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए, जो कि वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू सी फॉर DC एनालिसिस, DC इज योर वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, ठीक है, दैट इज द प्लॉट बिटवीन आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज। ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम आउटपुट वोल्टेज का टाइम के साथ प्लॉट करते हैं, और DC या वोल्टेज ट्रांसफर कर्व एनालिसिस में हम लोग आउटपुट वोल्टेज का किसके साथ, इनपुट वोल्टेज के साथ प्लॉट करते हैं। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है और ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। क्लियर है? हेलो, हेलो बेटा, समझ में आ रहा है? तो देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग में जब हमारा इनपुट वोल्टेज लो है, यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट देखिए काफी लो है। तो जब इनपुट वोल्टेज यहाँ तक, ये एक्चुअली थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक हमारा थ्रेशोल्ड से जब वैल्यू लो है तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। देखिए आउटपुट हमेशा हाई रहेगा, और जैसे ही ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना शुरू करेगा तो एक ट्रांजिशन आएगा। ये सब देख सकते हैं, जब इनपुट यहाँ थ्रेशोल्ड से हाई होना शुरू हुआ तो आउटपुट आपका धीरे धीरे लो होना शुरू हो गया, तो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। और जब ये थ्रेशोल्ड से हाई हो, मतलब बढ़ना शुरू हो गई वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपका 0 होने लगा, ठीक है। तो दिस इज योर वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। कोई डाउट इसमें किसी को? तो दिस इज योर इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, इसी में। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो।